Hello, my dear students of class 12th. Today I am going to teach you one of the most beautiful stories of O. Henry after 20 years, which is in your textbook Chinar 2, chapter 1. Introduction about the author of the story. William S. Porter, O. Henry, born William Sidney Porter, the master of short stories, is much better known under his pen name O. Henry. He was born in September 11, 1862 in North Carolina, where he spent his childhood. His only formal education was received at the school of his aunt Lena, where he developed a lifelong love for books. In 1895, Porter was accused of embezzling funds dating back to his employment at the First National Bank. In early 1898, Porter was found guilty of the banking charges and sentenced to 5 years in an Ohio prison. From this low point in Porter's life, he became a remarkable comeback. 3 years and about dozen short stories later, he emerged from prison as O. Henry to help shield his true identity. He moved to New York City, where, over the next 10 years before his death in 1910, he published over 300 stories and gained worldwide acclaim as America's favorite short story writer. Let us discuss the theme of the story. कि स्टोरी का थीम क्या है? After 20 years, it is a story of true friendship of two friends, Jimmy Wells and Bob. The story is about meeting between two friends according to a promise that made 20 years ago. The two friends separated to make their fortune and promised to meet each other exactly after 20 years to compare their achievements. Jimmy Wells joined police department and Bob went to West and became a criminal. During these 20 years, Bob earned money, but he became a criminal and is shown as an underworld character in the story. The story shows that time is the result of everything. It changes the goals and personalities. Though after 20 years they fulfilled their promise, but Jimmy got Bob arrested for his criminal activities. तो ये दो दोस्तों की कहानी है जो 20 साल पहले एक वादा करते हैं कि वो एग्जैक्टली 20 साल के बाद एक दूसरे को मिलेंगे, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, और देखेंगे किसने ज़िंदगी में क्या अचीव किया है. तो जिमी वेल्स पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है और बॉब जो है वेस्ट की तरफ चला जाता है और वो एक वहाँ पे मुजरिम बन जाता है, एक क्रिमिनल बन जाता है. हालांकि इस 20 साल के दौरान बॉब ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो एक अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर बन गया. तो स्टोरी में ये बताया जाता है कि टाइम इज़ द रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग, कि वक्त से पहले हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि आगे क्या हमारे साथ होने वाला है. तो इन 20 सालों में बॉब जो है वो क्रिमिनल बन जाता है और हम स्टोरी में देखेंगे कि कैसे जिमी वेल्स अपने ही दोस्त को अरेस्ट करता है. तो ये इसका थीम है. डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक चिनार 2 का फर्स्ट पेज है, जहाँ से हमारी ये स्टोरी शुरू होती है. आफ्टर 20 years. Here's the story of two friends who meet after 20 years. अब ये स्टोरी है दो दोस्तों की जो 20 साल के बाद मिलते हैं. तो हम इसमें नोटिस करेंगे कि कौन कौन सी चेंजेस जो हैं इस पीरियड में हुई हैं. फिज़िकल चेंजेस, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल या कुछ और चेंजेस हुई हैं उन दोनों दोस्तों के बीच में. नाउ रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ चेंज दे वर एंड हाउ दे रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर. कि इस पीरियड के दौरान उन दोनों दोस्तों में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं और कैसे उन्होंने एक दूसरे को पहचाना.
The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the streets. ये मैंने साइड पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं. जब हमारी स्टोरी शुरू होती है तो जो पुलिस मैन है वो अपनी ड्यूटी पे है. रात के करीब 10 बजे थे. न्यूयॉर्क शहर की सड़कें सुनसान थी क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही थी. एक पुलिस वाला जो देखने से स्टालवर्ट और इम्प्रेसिव लग रहा था अपनी ड्यूटी निभा रहा था. वो अपने डंडे को घुमा रहा था और वहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही थी और जो गलियाँ थी वो सुनसान थी और वहाँ पे लोग जो थे वो बहुत कम थे या नहीं थे. Page 2. Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now and then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare. The officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter, but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. तो पेज 2 में आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखेंगे कि जो फर्स्ट इसका पैराग्राफ है उसमें ओ हेनरी ने पुलिस मैन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है कि उसकी स्टालवार्ट फॉर्म, उसकी इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स, कितना आर्टिस्टिकली वो वहाँ मूव कर रहा था, उसकी जो फिज़ीक है वो स्ट्रॉन्गली बिल्ट है, उसका जो स्वैगर है, स्वैगर हुआ जो स्टाइल है, उसकी बॉडी मूवमेंट्स जो वो कर रहा है वो कैसी हैं, और वो उस जगह पे गश्त कर रहा था. सड़क के किनारे बनी दुकानें काफ़ी देर पहले बंद हो चुकी हैं. एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचकर ये पुलिसमैन जो है अपनी रफ्तार कम कर देता है. एक हार्डवेयर दुकान के करीब एक शख्स जिसके मुंह में बुझा हुआ सिगार था, उस शख्स ने पुलिस वाले को बताया कि वो अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा है. आप ये याद रखेंगे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि पुलिसमैन जो है इन दोनों दोस्तों में से एक पुलिसमैन है जिसका नाम जिमी वेल्स है और दूसरा बॉब. अब बॉब इसको बताता है कि मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसने 20 साल पहले उससे मिलने का वादा किया था. उसका कहना था कि जिस जगह वो खड़ा है यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहाँ से वो अपने दोस्त से अलविदा हुआ था. पुलिस वाले ने उसे बताया कि 5 बरस पहले उस रेस्टोरेंट को गिरा दिया गया. उस शख्स ने अपने सिगार को जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई. जब उसने माचिस की तीली अपने सिगार को जलाने के लिए जलाई तो उसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो पुलिस वाले ने उसका चेहरा देख लिया कि पेल कलर का उसका चेहरा था जिसमें उसकी आँख के नीचे एक निशान वाज़ा था. उसने स्कार्फ पिन पहना हुआ था और उस स्कार्फ पिन के ऊपर एक बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ था. उस शख्स ने इस पुलिसमैन को बताया कि बिग जो ब्रैडीज़ एक रेस्टोरेंट में उसने अपने दोस्त जिमी के साथ रात का खाना खाया था. 20 साल पहले की बात है. वो भाइयों की तरह हुआ करते थे. उसकी उम्र उस वक्त 18 बरस की थी जबकि उसका दोस्त 20 बरस का था. उस रात उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो पूरे 20 बरस के बाद फिर मिलेंगे चाहे उनकी हालत कुछ भी हो और इस मुलाकात के लिए ख्वाह उन्हें कितना ही लंबा सफ़र क्यों ना तय करना पड़े. तो ये कौन सुना रहा है इस पुलिसमैन को? बॉब, जो कि अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है. 20 साल पहले जो एक प्रॉमिस उन्होंने किया था उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए बॉब यहाँ पे पहुँचा है.
पेज 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। पुलिसमैन ने उसकी कहानी में इंटरेस्ट शो किया और दिलचस्पी लेते हुए उससे पूछा कि क्या आप दोनों के बीच में इन 20 सालों के दौरान कोई कम्युनिकेशन, कोई राब्ता कायम रहा था? तो उस शख्स ने बताया कि 1 या 2 साल तक तो आपस में वो खतो किताबत करते रहे, एक दूसरे को लेटर लिखते रहे, लेकिन बाद में ऐसा मुमकिन ना हो सका। उस शख्स ने पुलिस वाले को बताया कि वो 1000 किलोमीटर का सफ़र करके अपने दोस्त को मिलने के लिए आया है। उसने टाइम देखने के लिए अपनी घड़ी को बाहर निकाला जिसमें हीरे जड़े हुए थे। पुलिस वाले ने उससे पूछा कि क्या वो 10 बजे तक ही उस अपने दोस्त का इंतज़ार करेगा? तो उस आदमी ने उससे कहा, नहीं, वो 10:30 बजे तक उसका इंतज़ार करेगा। अब हवा के ठंडे झोंके भी चल रहे थे, मगर वो शख्स सिगार मुंह में दबाए बराबर इंतज़ार की घड़ियां गिनता जा रहा था और वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। तो ये मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी लिखे हैं कि जिमी वेल्स एक प्लॉडर होता है जो स्लो वर्कर होता है, लेकिन हार्ड वर्कर होता है, मेहनत कश होता है। तो यहाँ पे वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है और उसको यकीन है कि उसका दोस्त अगर इस दुनिया में होगा तो वो ज़रूर इस आदमी को मिलने के लिए आज यहाँ पे आएगा। पेज 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। करीब 20 मिनट के बाद एक लंबा आदमी ओवरकोट पहने हुए, जिसके कॉलर ने उसके कान तक ढक दिए हैं, तेज़ी से गली के दूसरे किनारे से आ रहा है। वो सीधे ही इस वेटिंग मैन यानी कि बॉब के पास पहुंच गया। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये आपकी बुक का पेज है। उसने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम बॉब है? उस शख्स ने कहा, हाँ। और इसने कहा कि मैं जिमी वेल्स हूँ। और वो दोनों एक दूसरे से शेक हैंड करते हुए एक दूसरे से लिपट गए। अब वो बीते सालों के मुतालिक गुफ्तगू करने लगे। बॉब ने जिमी वेल्स से कहा कि तुम्हारा कद 2-3 इंच बढ़ गया है। तो जिमी वेल्स ने उससे कहा कि हाँ, इसका कद 2-3 इंच बढ़ गया जबकि वो 20 साल की उम्र का था। तो अब ये दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू हो गए कि इस 20 साल के दौरान वो क्या करते रहे और उन्होंने क्या क्या किया। पेज 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब ये दोनों दोस्त बाहों में बाहें डाले चल रहे हैं। वेस्ट से आया हुआ दोस्त अपनी आप बीती सुना रहा है और दूसरा गौर से उसकी बातें सुनता जा रहा है। गली के एक कोने में ड्रग स्टोर था, जो कि बहुत ज़्यादा रोशनी वहाँ पे थी, ब्रिलियंट इलेक्ट्रिक लाइट्स थी वहाँ पे। जो ही वो रोशनी में पहुँचे, उनकी नज़रें एक दूसरे पर पड़ी। वेस्ट से आया हुआ दोस्त यानी बॉब एकदम से रुक गया और उसने अपनी बाजू छुड़ा ली। उसने दूसरे से कहा कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो सकते। हालांकि वो अपने दोस्त के साथ 20 साल के बाद मिल रहा है, मगर फिर भी अपनी यादाश्त के सहारे वो कह सकता है कि वो जिमी वेल्स नहीं है। वो उससे कहता है कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो। उसकी शक्ल जिमी वेल्स से अलग लग रही थी। दूसरे शख्स ने बॉब को बताया कि वो वाकई जिमी वेल्स नहीं है, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है और उसे बॉब को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसने बॉब को एक कागज़ का टुकड़ा हाथ में पढ़ने के लिए दिया। जब बॉब ने वो कागज़ का टुकड़ा पकड़ा तो उसके हाथ साकित थे, मगर पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। ये नोट उसके दोस्त जिमी वेल्स ने लिखा हुआ था, उसने तहरीर किया था। उसमें जिमी ने लिखा था कि अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस, कि अपने प्रॉमिस के मुताबिक मैं तुमसे तयशुदा मुकाम पे मिलने के लिए पहुंच गया था, मगर जूं ही
तुमने सिगार जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई, वो रोशनी तुम्हारे चेहरे पे पड़ी और मैंने पहचान लिया कि बॉब वो शख्स है जिसको शिकागो पुलिस ढूंढ रही है और वो शिकागो पुलिस में एक वांटेड मैन है, एक क्रिमिनल है। किसी भी तरह वो खुद अपने दोस्त बॉब को अरेस्ट करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाया, इसलिए उसने एक प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन, मतलब कि एक पुलिसमैन को सादा लिबास में ये काम करने के लिए भेजा। और तब उस नोट में ये जिमी वेल्स ने लिखा था कि बॉब यू आर अंडर अरेस्ट। तो मैं पढ़ती हूँ ये, जैसे आप देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 पे लास्ट की 3 लाइंस जो जिमी वेल्स ने उसको लेटर लिखा होता है। बॉब, I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of a man wanted in Chicago. Somehow I could not do it myself, so I went around and got a plainclothes man to do the job. Jimmy. अब एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है? An event that is less exciting than we had expected or than what has already happened. कि एक यहाँ पे इस स्टोरी के जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब 2 दोस्त मिलेंगे, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके बिल्कुल अपोजिट जो है हुआ यहाँ पे। और अब आयरनी ऑफ फेट क्या है? आयरनी क्या होता है? एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ सिचुएशन दैट सीम्स स्ट्रेंज और अम्यूजिंग। अब आपने देखा कि हमें इसकी एंडिंग जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग लगी। डियर स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ आफ्टर 20 years. Now you will be able to write the theme of the story, title of the story and its aptness, ironical ending, and character sketch of Bob and Jimmy Wells.